Good morning, students. This is class 5th, chapter 11, verbs of incomplete predication. So before starting this topic, first of all I would like to tell you something about verb. What is verb? An action word. What is verb? And action words are called verbs. So action words are called verbs. For example, run, sing, bake, dance, etc. How many types of verbs, how many kinds of verbs are there? So, there are 3 types of verbs. First is modal verbs. Modal verbs can, could, may, might. These are modal verbs, etc. And second is auxiliary verbs. Auxiliary verbs. These are also known as helping verbs. ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं. इन हिंदी यू कैन से सहायक क्रिया. फॉर एग्जाम्पल, इज, एम, आर, वॉज एंड वर, एक्सेट्रा. एंड थर्ड इज एक्शन वर्ब. हमें इन्हीं के बारे में ज़्यादा पढ़ना है. एक्शन वर्ब आर ऑफ 2 types. 2 types of action verbs are there. First is transitive verb. Transitive verb it has object. So first of all I will like to tell you what is transitive verb. A transitive verb basically links the subject with the object. What is the transitive verb? A transitive verb links the subject with the object. मतलब ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लिंक करता है. मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मतलब जो भी रहेगा दोनों का एक दूसरे पे दोनों का इफेक्ट रहेगा. एंड नाउ व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? अ डूअर इज अ सब्जेक्ट. एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? अ रिसीवर ऑफ द एक्शन. व्हाट इज ऑब्जेक्ट? हु receiver of the action. Is that clear? अब समझ में आ गया ना what is the transitive verb? Now let it understand with the example. So John sent a postman. John sent a postman. तो व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? जॉन इज द सब्जेक्ट. ओके, जॉन क्या है? जॉन इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. एंड सेंट क्या है? सेंट इज अ वर्ब. सेंट क्या है? सेंट इज वर्ब. एंड अ पोस्टमैन इज द ऑब्जेक्ट. पोस्टमैन क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट. नाउ second example, she left the notebook. She left the notebook.
in this sentence, she is the subject, left is verb, and the notebook, this is the object. ट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है. ट्रांसिटिव वर्ब है और मतलब जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है उसमें क्या होता है, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है. तो अब हमें अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में से निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? हमें अगर सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो हाउ वी विल फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट? आई विल टेल यू. सो यस, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट इन द transitive sentence. So transitive verb, if you want to find the object, simply you have to put the question what and whom. अगर आप what और whom क्वेश्चन अब करोगे तो you will get the object. तो in this first sentence, पहले वाले सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करते हैं what. what से तो आ नहीं रहा है. whom did John send? whom did John send? Answer is a postman. Now come on to second one. what she left, है ना? Question is what she left. So in answer you will get the notebook. Notebook is the object. Is that clear? किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं सेंटेंस में. ओके. So now the basic is clear. So let's begin with the chapter. Read these sentences carefully. John likes tennis. John likes tennis. You might be knowing कि ये जो रेड कलर से अंडरलाइन वर्ड है, what are these? These are verbs. I told you. I know John well. मैं जॉन को बहुत अच्छे से जानता हूँ. They gave me a book. उन्होंने मुझे किताब दी. The old man sat in a corner. Old man कहाँ बैठा हुआ है? In the corner. So in the above example, ask the following question to get answer. I told you. So what question you will be putting? What and whom. आप लोग क्या क्वेश्चन पुट अप करोगे इसमें से ऑब्जेक्ट जानने के लिए? What and whom. In this sentence, John likes what? Answer will be tennis. So you might be knowing what is tennis. Tennis is object in the sentence. In the second sentence, I know. Question of whom? I know whom? I know John. So answer is John. Here the noun tennis and John are object of the verb. अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये टेनिस और जॉन ये दोनों क्या हैं? ये जो वर्ब्स हैं इनके क्या हैं? ये ऑब्जेक्ट हैं. क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं. Here the noun tennis and John are object of the verb like and know respectively. Like और know यहाँ पे क्या है? verb है. A verb which has an object is called a transitive verb. इनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं. अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है और इनट्रांसिटिव वर्ब वो होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है. सो नाउ इट इज क्लियर. ट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं? वो वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट होता है. और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट कैसे निकाला जाता है ये भी मैंने आपको बताया कैसे निकाला जाता है ऑब्जेक्ट. जो भी सेंटेंस होता है उसमें आपको दो वर्ड्स आपको क्वेश्चन करने होते हैं. एक तो व्हाट से क्वेश्चन करना होता है. अगर उसका आंसर आता है तो दैट इज द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. अगर whom से आता है तो दैट इज ऑल्सो द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. इज दैट क्लियर? नाउ कंसिडर द सेंटेंस 3. दे गेव मी अ बुक. थर्ड वाला सेंटेंस था उसमें क्या था? दे गेव मी अ बुक. तो इसमें आपको क्वेश्चन करना है दे गेव मी व्हाट. आंसर क्या आ रहा है? अ बुक. दे गेव मी अ बुक. अगर आप इस सेंटेंस में क्वेश्चन करते हैं व्हाट दे गेव
तो आंसर में क्या आ रहा है? बुक, है ना, बुक आ रहा है। तो ये क्या है? बुक क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर आप whom से भी इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं तब भी आंसर आ रहा है। टू whom, बुक आ रहा है ना आंसर, दे गेव मी अ बुक। ये अगर आप व्हाट से क्वेश्चन करें, व्हाट दे गेव बुक, बुक क्या हो गया? अ बुक क्या हो गया? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आपने whom से क्वेश्चन किया, टू whom, तो इसमें आंसर में क्या आ रहा है? मी, किसको दिया किताब? मुझे दिया ना, दे गेव मी अ बुक ना, तो मी क्या है? मी इज ऑल्सो अब ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे मैम इसमें दो ऑब्जेक्ट आ रहा है। यस, एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द अदर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ I will be telling you object. Objects are of two types. First is direct object, and second is indirect object. Two kinds of objects are there, ठीक है। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी सेंटेंस में से हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना है तो उसके लिए हम लोग व्हाट और whom से ही क्वेश्चन करते हैं। किससे करते हैं? विद द वर्ड व्हाट एंड whom। बट टू गेट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें फाइंड आउट करना है सेंटेंस में, तो वी हैव टू क्वेश्चन फॉर, to whom, and for, to what. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए वी हैव टू यूज द क्वेश्चन वर्ड व्हाट एंड whom, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर या तो टू whom और फॉर या टू what, ठीक है। तो understand, we will understand with this example. Dan made her a cake. तो Dan क्या है? Dan is a subject. Made क्या है? Made क्या है? Made is a verb. अब हमको इसमें से ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले वी विल क्वेश्चन व्हाट। What Dan made? What Dan made? Answer is a cake. A cake क्या है? What से क्वेश्चन किया है ना, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? For whom Dan made a cake? For whom Dan made a cake? Answer is her. Her क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे सेंटेंस में से फाइंड आउट करना है, आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। सो यस, हम लोग कहाँ थे? दे गेव मी अ बुक। तो व्हाट जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया तो अ बुक आया, तो अ बुक कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। एंड अगर हमने क्वेश्चन किया टू whom, दे गेव अ बुक टू whom, आंसर इज मी। तो मी क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मी क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो हियर अ बुक इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गिव एंड मी इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। नोट दैट द आंसर टू व्हाट और whom इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हम व्हाट और whom से क्वेश्चन अप करते हैं तो दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड अगर हम टू whom और फॉर whom से अगर हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो दैट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? व्हाट और whom से अगर हम क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर आएगा तो दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फॉर whom और टू whom से अगर हम क्वेश्चन अप करते हैं तो दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यूजुअली द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इफ इट इज शॉर्ट कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस छोटा है तो कभी कभी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो पहले ही आ जाता है, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। नाउ कंसिडर द सेंटेंस 4। अब उसमें फोर्थ सेंटेंस क्या था? द ओल्ड मैन सैट इन अ कॉर्नर।
द ओल्ड मैन सैट इन अ कॉर्नर। तो अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट ही फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, अगर आप whom और what आप पुट अप कर रहे हो, क्वेश्चन यू आर पुटिंग अप द क्वेश्चन, whom नो आंसर इज कमिंग, what नो आंसर इज कमिंग, दैट मीन्स कि इस सेंटेंस में वी हैव नो ऑब्जेक्ट, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। आप what से क्वेश्चन करिए, what द ओल्ड मैन सेड, नो, दिस क्वेश्चन इज मीनिंगलेस, इसका कोई आंसर ही नहीं आ रहा है। अगर हम whom से क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, देन ऑल्सो देयर इज नो आंसर। सो दिस क्वेश्चन हैज नो ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या है ये, इंट्रांसिटिव वर्ब। इज दैट क्लियर? तो जो क्वेश्चन था क्या था, सेंटेंस था द ओल्ड मैन सैट इन अ कॉर्नर ना। द क्वेश्चन आर मीनिंगलेस, व्हाट और whom अगर आप क्वेश्चन अप कर रहे हो तो दैट इज मीनिंगलेस, क्योंकि उसमें कोई आंसर नहीं आ रहा है। द वर्ब सैट हैज नो ऑब्जेक्ट, सैट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अ वर्ब विच हैज नो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांसिटिव वर्ब। ऐसे जो वर्ब होते हैं वो उनको क्या कहा जाता है, इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। नाउ वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वो क्या होते हैं, will be understanding. Read these sentences carefully. He writes, he looks upset. अब यहाँ पे दो sentences हैं, he writes, he looks upset. क्या ये दोनों sentence, क्या ये sentence आपको complete लग रहे हैं? This sentence, आप ये जो sentence है ये आपको complete लग रहा है? No, it is not a complete sentence. The sentence one, he writes, make complete sense. But if you say the sentence he looks, sorry, he writes में यहाँ पे verb है ना, ये sorry this one is complete sentence है ना, तो ये जो sentence है ये complete है। बट अगर आप यहाँ पे ये जो sentence है आप कहिए he looks अगर आप बोल रहे हैं तो this is incomplete sentence. In the same way if you say, अगर आप एक sentence हम लिखते हैं यहाँ पे Steve looked, Steve looks, तो क्या ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट है? ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं कंप्लीट है? क्योंकि इसमें कोई, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें कोई ना कोई और भी वर्ड यहाँ पे ऐड करना होगा। इसी तरीके से ही राइट्स मेक कंप्लीट सेंस, बट इफ यू से द सेंटेंस ही लुक्स, अगर आप यहाँ पे सिर्फ ही लुक्स बोल देते हैं, ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, लुक क्या है, ये वर्ब हो गया, तो ये कंप्लीट नहीं है। यू हैव टू सप्लाई अ वर्ड लाइक अपसेट, जैसे यहाँ पे आपको कोई वर्ड, आपको एक वर्ड यहाँ पे आपको पुट अप करने से अपसेट, सैड, हैप्पी, चेयरफुल, कुछ भी आप लगाएंगे तब जाके ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। इसी तरीके से इसमें भी स्टीव लुक्ड, तो यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, बट अगर हम यहाँ पे एंग्री लगा देते हैं तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो वर्ड्स हम सेंटेंस में ऐड करते हैं वो वर्ड क्या कहलाते हैं, दैट वर्ड इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड। ठीक है, क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब्स बोले जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऐड किए जाते हैं। टू मेक द सेंस कंप्लीट, लुक देयरफॉर इज अ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अगर ये जैसे दो वर्ड ही अगर हमने यहाँ पे लगाएं और इसके बाद कोई वर्ड नहीं है तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, और ये जो सेंटेंस है ये क्या है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ओके, द वर्ड अपसेट विच कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। जैसे यहाँ पे अपसेट वर्ड लग गया तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। यहाँ पे एंग्री वर्ड मैंने लगा दिया तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। Here the word predication means what is said about something. Predication का मतलब क्या हुआ, किसी के बारे में क्या कहा गया, किसी के भी बारे में क्या कहा गया, तो वो क्या होता है, that is known as predication. Other example of verb of incomplete predication are, कुछ और एग्जाम्पल जो है ए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के, वो क्या है, is, am, are, was, were, turn, grow, appear, look, taste, etc. Read these sentences carefully. Ashley is intelligent. Ashley क्या है, वो intelligent है। The milk turned sour. Milk क्या है, वो sour हो गया, मतलब खट्टा हो गया। The sky grew very dark. In sentence one, the intransitive verb is needs the word intelligent. अब जैसे Ashley is,
अब ये जो वर्ब हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, इज क्या है, इज वर्ब ही तो है, मैंने आपको बताया था। इज कौन सा वर्ब है, इज एक्सिलरी वर्ब, या आप कह सकते हो हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो। ये है वर्ब बट ये कंप्लीट नहीं है। जैसे वहाँ पे हमने आपको बताया था ना कि ये जो वर्ब है ये क्या है, ये इनकम्प्लीट वर्ब, इनकम्प्लीट मतलब मीनिंग, ये कंप्लीट फुलफिल मीनिंग नहीं दे रहा है इसको। तो इसके लिए हमें इंटेलिजेंट वर्ड ऐड करना पड़ रहा है इसको कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। द मिल्क टर्न्ड, अब यहाँ पे टर्न्ड वर्ड है, टर्न्ड वर्ड है, ये क्या है, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, सेंटेंस को कंप्लीट नहीं, ये वर्ब क्या है, सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। द स्काई ग्रू, ये भी सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। इसके लिए यहाँ पे इंटेलिजेंट ऐड किया गया है, यहाँ पे सोर ऐड किया गया है, यहाँ पे वेरी डार्क ऐड किया गया है, ताकि ये सेंटेंस, तीनों सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। इन सेंटेंस 1 द इंट्रांजिटिव वर्ब इज नीड्स द वर्ड इंटेलिजेंट टू कंप्लीट व्हाट इट सेज अबाउट इट्स सब्जेक्ट। जैसे प्रेडिकेशन का मतलब, प्रेडिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी के बारे में क्या कहा जा रहा है ना। तो यहाँ पे ये जो एशले इज व्हाट, इसको कंप्लीट करने के लिए एक वर्ड चाहिए ना। तो इंटेलिजेंट वर्ड जब हम ऐड कर दे रहे हैं तो हमें पता चल जा रहा है एशले के बारे में क्या बताया जा रहा है। इसी तरीके से सेकेंड वाला सेंटेंस है, द इंट्रांजिटिव वर्ब टर्न्ड नीड द वर्ड सोर टू कंप्लीट व्हाट इट सेज अबाउट द सब्जेक्ट। अब टर्न बता दिया कि टर्न, देखिए जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उनमें क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में एक लिंक होता है। तो यहाँ पे क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई लिंक ही नहीं बन पा रहा है ना। तो इसके लिए देखिए द मिल्क टर्न, अब सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है, टर्न, टर्न से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब हाँ यहाँ पे आगे सोर वर्ड ऐड हो गया तो हमें समझ में आ गया कि क्या बताया जा रहा है कि द मिल्क टर्न सोर। टर्न नीड द वर्ड सोर टू कंप्लीट व्हाट इट सेज अबाउट द सब्जेक्ट मिल्क। ठीक है, जब ये सोर वर्ड जो है ऐड कर दिया जा रहा है तो ये सेंटेंस क्या है, ये कंप्लीट हो रहा है। In sentence 3 the intransitive verb grew needs the word very dark। ठीक है, अब grew the sky grew, इसमें सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। जब very dark बोल दिया जा रहा है तो ये सेंटेंस क्या हो जा रहा है कि पता चल रहा है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला जा रहा है, तो कंप्लीट सेंस बना रहा है। टू कंप्लीट व्हाट इट सेज अबाउट द सब्जेक्ट द स्काई। ठीक है, इसीलिए वेरी डार्क वर्ड ऐड किया गया है ताकि इससे पता चल जाए कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला जा रहा है। एन इंट्रांजिटिव वर्ब विच नीड द हेल्प ऑफ सम वर्ड to complete what it says about the subject is called a verb of incomplete predication। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, वो इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनमें जो वर्ब होता है वो पूरा सेंस नहीं दे पा रहा है और उसके लिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई वर्ड ऐड करना पड़ता है उसको सेंस देने के लिए। तो ऐसे जो वर्ब होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। The word or group of words which help a verb to complete what it says is known as complement। मतलब अब वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि सेंटेंस में ऐड किया जाता है उसको कंप्लीट बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे क्या है, इंटेलिजेंट वर्ड, सोर वर्ड, डार्क वर्ड, वेरी डार्क वर्ड, ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट वर्ब है। ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट वर्ब है ना, क्योंकि ये जो सेंटेंसेज है इज, टर्न्ड, ग्रू, ये सेंटेंस को पूरा नहीं कर पा रहे, इनके लिए हमें ये वर्ड ऐड करना पड़ रहा है। ये वर्ड क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट वर्ड है। Is that clear? If such a complement help the verb to complete what it says about its subject, it is known as subjective complement। अगर ऐसे वर्ड जो कि सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं तो वो वर्ड क्या होते हैं, वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, इनसे हमें सब्जेक्ट को पता चला। द स्काई वॉट, यहाँ पे वेरी डार्क क्या है, वेरी डार्क स्काई ही तो है ना, इन दोनों का देखो लिंक है, सब्जेक्ट के साथ इसका लिंक है ना, इसीलिए इसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। ठीक है, इनका इसके साथ लिंक होना चाहिए। अब यहाँ पे सोर क्या, व्हाट टर्न सोर, मिल्क ना, तो मिल्क और सोर इन दोनों का कनेक्शन है ना, तो इट इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इंटेलिजेंट कौन है, एशले ही तो इंटेलिजेंट है ना, तो यहाँ एशले और इंटेलिजेंट इन दोनों का लिंक है ना, इसलिए इसको हम सब्जेक्टिव, मतलब वो जो कॉम्प्लीमेंट वाले जो वर्ड होते हैं जो सब्जेक्ट को, जिनका लिंक सब्जेक्ट के साथ है, तो वो क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं। उनको क्या कहा जाता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। नाउ अ ट्रांजिटिव वर्ब में ऑल्सो बी अ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी हो सकते हैं।
दैट इज नीड्स अ कॉम्प्लीमेंट, उनके साथ भी कॉम्प्लीमेंट वर्ब्स ऐड करने पड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, वहाँ पे तो क्या था, ऑब्जेक्ट नहीं था, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फिर भी ये वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। माई फ्रेंड सेंड्स मी एन ईमेल एवरी डे। अब देखिए ये ट्रांजिटिव वर्ब ही है। माई फ्रेंड सेंड्स व्हाट, माई फ्रेंड सेंड्स व्हाट, आंसर इज एन ईमेल, ईमेल आंसर है ना। सेकेंडली, मी रिफर टू समबडी डिफरेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट। माई फ्रेंड सेंड्स मी है ना, माई फ्रेंड सेंड्स मी एन ईमेल एवरी डे। अब मी जो है वो अलग है, हो गया ना, मी रिफर टू समबडी डिफरेंट फ्रॉम सब्जेक्ट, मी जो है वो सब्जेक्ट से अलग हो गया, माई फ्रेंड, देयरफॉर मी इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेंड। मी जो है वो सेंड का ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, मी जो है वो सेंड का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, द बॉयज इलेक्टेड टीचर देयर प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, द बॉय इलेक्टेड whom, द बॉय इलेक्टेड whom या what अगर हम कहते हैं तो what से क्या आता है, द बॉय इलेक्टेड प्रेसिडेंट, देयर प्रेसिडेंट, है ना। तो अगेन पीटर रिफर्स टू समबडी डिफरेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, द बॉयज इलेक्टेड पीटर देयर प्रेसिडेंट, द बॉयज इलेक्टेड पीटर देयर प्रेसिडेंट, लड़कों ने पीटर को अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं, द बॉयज इलेक्टेड व्हाट, आंसर क्या है, प्रेसिडेंट, whom पीटर, है ना, आंसर यही तो आ रहा है ना, द बॉयज इलेक्टेड व्हाट, प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, whom पीटर। अगेन पीटर रिफर टू समवन समबडी डिफरेंट फ्रॉम सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए पीटर, इसमें सब्जेक्ट क्या है, बॉयज है यहाँ पे, है ना, सब्जेक्ट क्या है, बॉयज है। अगेन पीटर रिफर्स टू समबडी डिफरेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट, द बॉयज, देयरफॉर पीटर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इलेक्टेड, है ना। पीटर क्या है, पीटर ऑब्जेक्ट हुआ ना, इलेक्टेड का मतलब इलेक्टेड जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो पीटर ही तो हुआ। तो ये भी क्या है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। बट इफ द वर्ड देयर प्रेसिडेंट आर लेफ्ट आउट, द सेंटेंस विल नॉट मेक कंप्लीट सेंस। पर यहाँ पे क्या है कि ये जो वर्ड है ना, देयर प्रेसिडेंट, ये छूट रहा है, द सेंटेंस विल नॉट मेक कंप्लीट सेंस। द बॉयज इलेक्टेड पीटर फॉर व्हाट, द बॉयज इलेक्टेड पीटर फॉर व्हाट, तो फिर आंसर क्या आएगा, देयर प्रेसिडेंट। द वर्ड देयर प्रेसिडेंट आर नीडेड टू कंप्लीट हाउ द वर्ब इलेक्टेड अफेक्ट पीटर। मतलब इसमें इन दोनों का एक लिंक नहीं बन पा रहा है, तो ये भी क्या है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दोनों में एक लिंक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का लिंक नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो इसलिए इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। द कोच वॉन्टेड द अनस्किल्ड प्लेयर कैपेबल। यहाँ पे भी आप क्वेश्चन करिए, व्हाट द कोच वॉन्टेड, कैपेबल, और whom, what the coach wanted, the coach wanted the unskilled player capable, ठीक है। whom, what अगर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, कैपेबल प्लेयर, है ना, और अगर whom कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, द अनस्किल्ड प्लेयर। अगेन अनस्किल्ड प्लेयर रिफर्स टू समबडी डिफरेंट फ्रॉम द, मतलब फिर से ये दोनों में अलग अलग है ना, अलग अलग आ रहे हैं, अनस्किल्ड प्लेयर आ रहा है, उसके बाद द कोच, देयरफॉर द अनस्किल्ड प्लेयर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वांटेड। अनस्किल्ड प्लेयर ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है वांटेड का, क्या चाह रहे हैं, अनस्किल्ड प्लेयर। पर अगर हम यहाँ पे कैपेबल वर्ड क्या है वो छूट जा रहा है ना, द वर्ड कैपेबल इज लेफ्ट आउट, द सेंटेंस विल नॉट मेक कंप्लीट सेंस। द कोच वांटेड द अनस्किल्ड प्लेयर फॉर व्हाट, तो आंसर क्या है, कैपेबल। The word capable is needed to complete how the verb affects the subject, the coach, ठीक है। तो a transitive verb which needs some words or word to complete what it says about its object is also called a verb of incomplete predication। मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, उन वर्ड, वो जो वर्ड्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, a verb of incomplete predication। तो a transitive verb which needs some word or word to complete what it says about the object is also called a verb of incomplete predication।
The word or group of words which help the transitive verb to complete what it says about as its complement. As such, complement refers to the object of the verb. It is known as objective complement. वहाँ पे subjective complement क्या था कि जो कॉम्प्लीमेंट वाले जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड थे उनका सब्जेक्ट से लिंक था. अब यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड है उनका ऑब्जेक्ट से लिंक होना चाहिए. किससे लिंक होना चाहिए? ऑब्जेक्ट से लिंक होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे जो वर्ड होंगे उनको क्या कहा जाएगा? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा. आई थिंक दिस इज नाउ क्लियर टू यू ऑल. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज. Underline the verb in the following sentences, then write after the verb whether it is transitive or intransitive verb. तो यहाँ पे देखिए, Jenny bought a present for Tom. इसमें वर्ब क्या है? bought है, Jenny सब्जेक्ट है. अब देखिए ये ट्रांसिटिव वर्ब है. क्यों? क्योंकि अगर आप what और whom से क्वेश्चन करेंगे तो इसमें आंसर है what Jenny bought a present, whom for Tom. ट्रांसिटिव हुआ ये. Jim is running in the track meet, है ना? Jim is running in the track meet. What? नहीं, कोई आंसर नहीं आ रहा. Whom? कोई आंसर नहीं आ रहा. तो ये क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब है. और इसमें वर्ब क्या है? रनिंग है. You will find the letter soon. What you will find? The letter. ट्रांसिटिव वर्ब हो गया ये. The soup is salting. The soup is salty. अब यहाँ पे what और whom से अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो इंट्रांसिटिव वर्ब है. Mike is the second oldest in the family. What is Mike? Whom is Mike? कोई आंसर नहीं है, तो this is also a intransitive verb. Linda, यहाँ पे is क्या है? is verb है. ओके, वर्ब भी अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर लीजिए इसको. This is also a verb. Linda gave Tony an award for his work. What did Linda give? An award. To whom? Tony. है ना? तो ये transitive verb है. Now come on to exercise B. State whether the verb is in the following sentence are transitive, intransitive और incomplete predication. ठीक है, तीनों हमको देखना है. The boy stood on the burning deck. ये क्या है? This is intransitive verb. The child has fallen asleep. This is also intransitive verb. क्योंकि what और whom से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो इसमें कोई आंसर नहीं आ रहा. And third, I saw the accident with my own eyes. अब इसमें आप क्वेश्चन करिए what did I saw? An accident. ठीक है, आंसर आ रहा है ना? ये क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है. They are friends. They और are. They are अगर हम इसको कर रहे हैं, they are कर रहे हैं, तो इसमें ये पूरा इसका सेंस नहीं बन रहा है. तो इसमें हमने फ्रेंच ऐड किया वर्ड, तो ये क्या है? ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट लगाया गया है. She did not admit her fault. ये क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है. क्यों है? what she did not admit her fault. ट्रांसिटिव है ना, ये ऑब्जेक्ट इसमें आ रहा है. what did children like? Sweet. ये भी ट्रांसिटिव है. ओके, now come on to exercise C. In each of the following sentence, choose whether the bolded verb is transitive or intransitive. इसमें कोई bolded verb नहीं दिया हुआ है, तो I have underlined it. आप लोग देख लीजिए. verb ये क्या है? intransitive है. He gave the book to the teacher. आप इसमें क्वेश्चन करिए what book आंसर आएगा, है ना? whom टीचर आएगा, तो ये क्या है? ट्रांसिटिव है. They laughed at the joke, है ना? आप इसमें फिर से क्वेश्चन करिए what और whom आंसर नहीं आ रहा है. दिस इज इंट्रांसिटिव. She slept for 8 hours. This is also intransitive. We lived in Mexico for 2 years. This is also intransitive. I like her. I like ये इनकम्प्लीट है. her हमको लगाना पड़ा इसलिए ये इंट्रांसिटिव वर्ब है. ठीक है. सो आई थिंक नाउ दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू.